Hello, my dear students. Welcome in our today's lecture. Today we are going to learn about the cyclic structure of fructose. जैसा बेटे लास्ट पीरियड में हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी किए, आज बेटा हमको स्टडी करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज थोड़ा लास्ट पीरियड में कंप्लीट किए हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो वी नो दैट ग्लूकोज फॉर्म द टू साइक्लिक स्ट्रक्चर. वन इज अल्फा डी positive glucopyranose. Why it is called alpha? Because OH group of anomeric carbon present in downward direction, means in Fischer projection formula it is present on right hand side. Why it is called D sugar? Because OH group of last chiral carbon present on right hand side. Why it is called positive? Because it is dextro rotatory compound. And why it is called glucopyranose? Because it is the pyranose of glucose, therefore it is called glucopyranose. वैसे बेटे दूसरा स्ट्रक्चर था बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज. Why it is called beta? Because OH group of anomeric carbon present on upward direction, means in Fischer projection formula they are present on left hand side. So this much we had studied in previous lecture. Now in today's lecture we are going to study cyclic structure of fructose. Fructose, fructose. Now we know that fructose having the molecular formula C6H12O6. बेटा फ्रुक्टोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. We know that both the glucose and fructose has the same molecular formula, but they possess different functional group. तो बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर बेटा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज C6H12O6, मीन्स इट कंटेन द 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. नाउ फ्रुक्टोज इज कीटोहेक्सोस. फ्रुक्टोज क्या है बेटा? कीटोहेक्सोस है. Why it is called keto? Because it contains the ketonic group C double bond O group. And why it is called hexose? Because it contains the 6 carbon. So it contains the 6 carbon and ketonic group, therefore it is called ketohexose. Now among the all carbohydrate, fructose is sweetest sugar. बेटा जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, आराबिनोज, झाइलोस, जितने भी बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है, जितने भी बेटा शुगर्स है, उन सब में बेटा सबसे स्वीटेस्ट शुगर, सबसे बेटा मीठी शुगर है फ्रुक्टोज. राइट. नाउ फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी कंपाउंड. फ्रुक्टोज बेटा क्या है बेटा? लीवोरोटेटरी कंपाउंड है. लीवोरोटेटरी कंपाउंड मीन्स इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज लीवोरोटेटरी. एंड वी नो दैट लीवोरोटेटरी डिनोटेड बाय निगेटिव साइन. लीवोरोटेटरी को बेटा हम डिनोट करते बेटा कैसे? निगेटिव साइन से. नाउ सीयर इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज. CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O,
single bond C, single bond H, single bond OH, single bond C, single bond OH, single bond H, single bond C, single bond OH, single bond H, and single bond CH2OH. How many carbons are there? 6 carbons are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट? अब बेटा इसको नंबरिंग दे देंगे हम. इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द सेकेंड कार्बन, इट इज द थर्ड कार्बन, इट इज द फोर्थ कार्बन, it is the fifth carbon, it is the sixth carbon. So 6 carbons are there, therefore C6. Count the number of hydrogen. 2 and 1 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 and 2 12. So C6H12. Count the oxygen. 1 2 3 4 5 6. तो बेटा ये O6. So it is the structural formula of fructose. Now these structural formula clearly indicate that ketonic group present on second carbon. ये बेटा structural formula clearly indicate कर रहा कि बेटे ketonic group बेटे कहाँ present है? second carbon पे present है. Right? So these formula clearly indicate these fructose contain 1 ketonic group and 5 hydroxyl group. अब बेटा ketonic group C डबल बॉन्ड O कितने हैं बेटा? 1 है. और बेटा OH कितने हैं? 1 2 3 4 5. So fructose contain 1 ketonic group and 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो बेटा फ्रुक्टोज में बेटा एक कीटोनिक ग्रुप है और बेटा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब ये फर्स्ट और लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो. दीज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्राइमरी एंड दीज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर सेकेंडरी इन नेचर. तो बेटे ये पहला और ये बेटा लास्ट दोनों OH बेटा कौन से है? प्राइमरी है. Why it is called primary? Because OH group attach on primary carbon. While this OH, these OH and these OH means OH present on third carbon, fourth carbon, fifth carbon, they are secondary in nature. So one molecule of fructose contain 1 ketonic group and 5 hydroxyl group. Out of 5 hydroxyl group, 2 hydroxyl groups are primary in nature and 3 hydroxyl groups are secondary in nature. अब बेटा देखो कायरल कार्बन. अब बेटा ये फर्स्ट कार्बन कायरल रहेगा क्या? नहीं. व्हाट इज कायरल कार्बन? दोज कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ 4 different group on 4 side or 4 valencies, that carbon is called chiral carbon. अब बेटे यहाँ पे CH2 है ना, so this carbon is not chiral carbon. Now second carbon, it is bonded with double bond with oxygen, therefore it is also not chiral carbon. But this carbon number 3rd, right, it is chiral. Carbon number 4, it is also chiral. Carbon number 5, it is also chiral. And carbon number 6, it is not chiral. तो बेटा कार्बन नंबर 3rd, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, these 3 carbons are chiral carbon because they are bonded with different group on 4 sides. तो बेटा इनके 4 साइड 4 डिफरेंट ग्रुप है बेटा, इसलिए बेटा ये तीनों कार्बन, कार्बन नंबर 3rd, 4th और बेटा 5th कायरल कार्बन है. Therefore it form 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स. इसलिए बेटा ये कितने ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करेगा? 8. सो इट कंटेन 3 कायरल कार्बन C3, C4, C5. Therefore it forms 8 optical isomers. How optical isomers are calculated? A is equal to
2n। तो बेटा किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा A इज इक्वल टू 2n। A इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर्स, n इट इज एन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब बेटे 3 कायरल कार्बन है ना, तो 2^3। 2^3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, therefore it form the 8 optical isomers. So fructose contain 3 chiral carbon, carbon number 3rd, 4th, 5th, therefore it form 8 optical isomers, right? And IUPAC name of fructose is 1, 3, 4, 5, 6 pentahydroxy hexane 2-on। अब बेटा देखो 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा ये कीटोन है ना, तो 6 कार्बन वाला कीटोन हेक्सेनोन। हेक्सेन से बेटा हेक्सेनोन। डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा? सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट सेकेंड, तो हेक्सेन 2-on, हेक्सेन 2-on, राइट। अब बेटा OH कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, सो इट इज पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटाहाइड्रोक्सी। अब बेटे OH कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन पे। देयरफॉर इट्स IUPAC नेम इज 1, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 2-on। Understood? Any difficulty up to here? Now it is the general information about the fructose। ये बेटा इंफॉर्मेशन है बेटा किसकी? फ्रुक्टोज की। अब बनाएंगे हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। नाउ इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, हाइड्रोजन एटम ऑफ 5th कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन माइग्रेट टूवर्ड्स दी कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये देखो बेटा इधर, ये CH2OH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बेटा ये कौन सा कार्बन? फर्स्ट, ये बेटा सेकेंड, ये बेटा थर्ड, ये बेटा फोर्थ, ये बेटा फिफ्थ और ये बेटा सिक्स्थ। नाउ वी नो दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इस स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलते हैं हम? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब बेटा ये 5वां कार्बन है ना, सो दिस OH ग्रुप ऑफ, OH ग्रुप है ना बेटा ये 5वें कार्बन का, सो हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन माइग्रेट टूवर्ड्स दी कार्बोनिल ऑक्सीजन। जैसा बेटा कल ग्लूकोज में हुआ था, 5th कार्बन का हाइड्रोजन, OH ग्रुप का हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ था फर्स्ट कार्बन के कार्बोनिल ऑक्सीजन पे। अब बेटे यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन पे है ना, राइट। सो हियर हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन माइग्रेट टूवर्ड्स दी कार्बोनिल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ सेकेंड कार्बन, ड्यू टू विच ऑक्सीजन बिकम्स OH, ऑक्सीजन बिकम्स OH, राइट। एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सेकेंड कार्बन एंड 5th कार्बन बाय यूजिंग दी ऑक्सीजन। ये देखो CH2OH, बेटा मैंने इसको इधर लिखा CH2OH। अब बेटा ये C डबल बॉन्ड O है ना, तो बेटा ये 5th कार्बन का ऑक्सीजन गया किधर? O पे, तो O का बन गया OH। फिर सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड COHH, सिंगल बॉन्ड COHH, सिंगल बॉन्ड C,
अब बेटा ये O है ना, तो बेटा ये पांचवा कार्बन अटैच हुआ O के साथ। सो न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन थ्रू दी ऑक्सीजन। ग्लूकोज में क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ था। यहां पर सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में, राइट, क्योंकि बेटे वहां पर कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे था, यहां कार्बोनिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है। ओके, सो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group of fifth carbon or last chiral carbon migrate towards the carbonyl oxygen and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon through the oxygen to form five-sided heterocyclic ring similar to furan। तो बेटे वहां जैसा 6-sided ring फॉर्म होती ना, यहां बेटे कितनी साइडेड रिंग फॉर्म होती, 5-sided। आप देखो ये पूरा यहां तक एक, फिर ये बेटा दूसरी साइड, ये बेटा तीसरी साइड, ये बेटा चौथी साइड, और ये बेटा पूरा एक। दिखाई दे रहा, जैसा जैसा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो बेटा ये पूरी एक साइड, ये बेटा 2, ये 3, ये 4, और ये बेटा पूरी 5। So, hydrogen atom of OH group of fifth carbon or last chiral carbon migrate towards the carbonyl oxygen, due to which oxygen becomes OH and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon through the oxygen to form five-sided heterocyclic ring, and these five-sided heterocyclic ring similar to furan। देखो इधर, in cyclic structure hydrogen atom of OH group of fifth carbon or last chiral carbon migrate towards carbonyl oxygen, due to which oxygen becomes OH and new bond is formed between the carbonyl carbon and fifth carbon through the oxygen to give five-sided heterocyclic compound, similar to furan। और बेटे ये स्ट्रक्चर बेटे किसके सिमिलर है, फ्यूरॉन के। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्रुक्टोफ्यूरानोस। इसलिए बेटा इस 5-sided रिंग को बेटा क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोस। फ्यूरानोस क्यों बोल रहे, बिकॉज इट इज सिमिलर टू फ्यूरॉन। अब बेटे फ्यूरॉन और बेटा शुगर है ना, शुगर के नाम के लास्ट में आता OSE, तो फ्यूरॉन से फ्यूरानोस, फ्यूरॉन से फ्यूरानोस, राइट। अब बेटे फ्रुक्टोस का फ्यूरानोस है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्रुक्टोफ्यूरानोस। जैसा बेटा कल बोले थे ग्लूकोपायरानोस, क्योंकि बेटे ग्लूकोज का पायरानोस था इसलिए ग्लूकोपायरानोस। अब बेटा ये फ्रुक्टोस का फ्यूरानोस है, इसलिए बेटा फ्रुक्टोफ्यूरानोस, राइट। नाउ दिस फ्यूरॉन इट इज एन 5-sided हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बेटा फ्यूरॉन ये स्ट्रक्चर है बेटा फ्यूरॉन का, ये दिखाई दे रहा। सो इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्यूरॉन। कितने साइड है बेटा, 5, 1 2 3 4 5। सो फ्यूरॉन इज 5-sided heterocyclic compound। फ्यूरॉन बेटे क्या है, 5-sided heterocyclic compound है, कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। इसमें बेटा एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन होते हैं। चलो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया ना। अब बेटा ये कायरल कार्बन पहले अकायरल था ना, अब बेटा ये भी कार्बन क्या हो गया बेटा, कायरल। कार्बोनिल कार्बन पहले बेटा अकायरल था, मगर अब बेटा ये क्या बन गया, कायरल। एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को बेटा क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एनोमेरिक। पहले था बेटे ये अकायरल, अब अकायरल का बन गया कायरल।
राइट, एंड दिस कायरल कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अब देखो ये एनोमेरिक कार्बन का OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स इट इज बीटा शुगर, लेफ्ट हैंड साइड है ना, बीटा। अब देखो लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी शुगर। और बेटा फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है ना, ये देखो फ्रुक्टोज इज लीवो रोटेटरी, देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, राइट। अब बेटे ये फ्यूरानोज है फ्रुक्टोज का, देयरफॉर इट इज फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो पूरा नाम क्या हुआ बेटा, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज। Why it is called beta? Because OH group of anomeric carbon present on left hand side. Why it is called D sugar? Because OH group of last chiral carbon present on right hand side. Why it is called negative? Because it is levo rotatory compound. ठीक है। अब बेटा इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये CH2OH को इधर लिखो, OH को बेटा इधर लिखो, खाली इतना चेंज करो। हाँ, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये बेटा OH इधर, ये यहां बेटा C, और ये बेटा CH2OH। ठीक है, ये बेटा H2 नहीं, CH2OH, और ये बेटा OH एक साथ अटैच हो गया था। चलो अब बोलो मुझे, इट इज द एनोमेरिक कार्बन, इट इज द एनोमेरिक कार्बन, राइट। पहले था बेटा वो अकायरल, बट नाउ इट बिकम्स कायरल। सो OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्फा। तो बेटा फिर इसका नेम क्या बनेगा, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोस, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोस। Why it is called alpha? Because OH group of anomeric carbon present on right hand side. Why it is called D? Because OH group of last chiral carbon present on right hand side. Why it is called negative? Because it is levo rotatory compound. ठीक है, चलो अब बेटा इसका अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, कल जैसा बेटा ग्लूकोज का बनाए थे ना, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोस और बेटा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोस। अब ऐसा ही बनाएंगे हम फ्रुक्टोज का, हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, राइट। सो दोज ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, दे गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दोज ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट ग्रुप गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, here. So it is the Fisher projection formula of fructose. अभी बताया बेटा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH, राइट। चलिए अब बेटा मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिखूं, देखो इधर ऐसा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बेटा सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH, इट इज फर्स्ट कार्बन, इट इज सेकेंड कार्बन। थर्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड C, ये बेटा सिंगल बॉन्ड C। अब बेटा H किधर है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। So it is the first carbon, it is the second carbon, it is third carbon. चलिए फोर्थ कार्बन, ये बेटा फोर्थ कार्बन है, ये फर्स्ट, ये बेटा सेकेंड, ये थर्ड, ये बेटा फोर्थ, ये बेटा फिफ्थ और ये सिक्स्थ। चलिए फोर्थ कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड C,
अब बेटा OH किधर है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. H किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. चलिए फिफ्थ कार्बन, सिंगल बॉन्ड C, ये बेटा सिंगल बॉन्ड C. H डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया बेटा. अब ये CH2OH और ये बेटा OH, ये OH, ये बेटा OH, ये H, ये बेटा H और ये CH2OH. ठीक है. सो इट इज द फर्स्ट कार्बन, it is the first carbon, it is the second carbon, it is third carbon, it is fourth carbon, it is fifth carbon और ये बेटा sixth carbon. अब बेटा अपने को बॉन्ड सेकेंड और फिफ्थ कार्बन में फॉर्म करना है ना. चलिए, these हाइड्रोजन माइग्रेट टूवर्ड्स कार्बोनिल ऑक्सीजन. ये बेटा हाइड्रोजन बेटा माइग्रेट होगा किधर, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे. राइट. तो बेटा ये O का बन जाएगा OH और बेटा न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन में. ऐसा बनेगा ना. देखो इधर ये बन गया बेटे 5 साइडेड रिंग. राइट. देखो इधर ये बना ना 5 साइडेड रिंग. ये H इधर शिफ्ट हो गया O पे, तो बेटा ये O का बन गया OH. ये CH2OH, ये बेटा CH2OH. इट इज द फर्स्ट कार्बन, it is the second it is the first carbon, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon, it is the fifth carbon, it is the sixth carbon. है सेम. CH2OH, ये बेटा CH2OH, सिंगल बॉन्ड C और ये बेटा O का बन गया OH. तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड C, ये C का, ये O का बन गया बेटा OH. ये सिंगल बॉन्ड C, ये बेटा सिंगल बॉन्ड C. OH अपवर्ड साइड, H डाउनवर्ड साइड. OH अपवर्ड, H डाउनवर्ड. राइट. अब बेटा फिर ये सिंगल बॉन्ड C, H, सिंगल बॉन्ड OH. तो बेटा सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड OH. फिर सिंगल बॉन्ड ये फिफ्थ कार्बन, सिंगल बॉन्ड H, ये बेटा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH. थोड़ा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH. It is the cyclic structure of right fructose. अब बेटा देखो OH, it is the anomeric carbon. So anomeric carbon, now OH group of anomeric carbon present in downward direction. Means in Fisher projection formula it is present in right hand side and that sugar is called alpha. So it is alpha D negative fructofuranose. Why it is called alpha? Because OH group of anomeric carbon present in downward direction. Means in Fisher projection formula it is present in right hand side. Why it is called D sugar? Because OH group of last chiral carbon present on right hand side. Why it is called negative? Because it is levorotatory compound. It rotates the plane polarized light in anti-clockwise direction. और बेटा 5 साइडेड है ना, तो बेटा फ्यूरॉन, तो फ्यूरॉन से फ्यूरानोज. अब बेटा किसका फ्यूरानोज है? फ्रुक्टोज का. देयरफॉर इट इज फ्रुक्टोफ्यूरानोज. सो अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज. ये बेटा बीच में डैश है. हाँ, सिंबल के बीच में बेटा ये डैश है. चलो अब एक काम करो, ये OH को अपवर्ड करो, CH2OH को डाउनवर्ड करो. OH ऊपर, CH2OH नीचे. तो बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, 5 साइडेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन. इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द सेकेंड कार्बन, इट इज द थर्ड कार्बन, इट इज द फोर्थ कार्बन, इट इज द फिफ्थ कार्बन, इट इज द सिक्स्थ कार्बन. नाउ दिस सेकेंड कार्बन इज एन एनोमेरिक कार्बन. अब बेटा ये सेकेंड कार्बन एनोमेरिक है ना. अब बोलो एनोमेरिक कार्बन का OH कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में. मीन्स इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. देयरफॉर सच शुगर इज कॉल्ड बीटा शुगर. इसलिए बेटा इसका नाम क्या होगा? बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज. ये दोनों में बेटा क्या डिफरेंस रहेगा? ओनली position of OH group of anomeric carbon. Here OH group of anomeric carbon present on downward direction,
here OH group of anomeric carbon present on upward direction. Therefore, it is alpha and it is beta. So, it is the cyclic structure of fructose. ये है बेटा फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब बेटे ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को यूज करके हमें बनाना है स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकाराइड. डाइसैकाराइड याद है ना. सो दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकाराइड विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट लेक्चर.